Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Mohammad Yusuf. We are discussing the growth hormone, its functions we have discussed. Today we will discuss the regulation of secretion of growth hormone, how the hormone is regulated, its stimulating factors and inhibitory factors, when it will increase and when it will decrease. But before that, as per routine, today I have selected hadith, that is फरमान रसूल. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र. तर्जमा उर्दू जानने वाले या ज़रा से समझने वाले, ला यदखुलु नहीं दाखिल हो सकता, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, मन जो कोई, कान फी क़ल्बिही जिसके दिल में हो, मन काना फी क़ल्बिही जिसके दिल में हो, क्या? मिस्काल ज़र्रतिन, जरा बराबर, मिस्काल ज़र, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम. मिन किब्र, किब्र किब्रियाई, बड़ी बड़ाई, गुरूर के. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है. मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स जो अहादीस की हैं उसमें बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का पहला नंबर है. मुस्लिम शरीफ का रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसके दिल में जरा बराबर भी अगर किब्र होगा, गुरूर होगा, रऊनत जिसको हम कहते हैं वो होगी, गर्दन में अकड़ होगी, ये हम मुख्तलिफ फॉर्म्स है ना किब्र की, तो उस वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा. ये शायद कमेंट तो नहीं कहते, शायद शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म अजीम है शिर्क. अल्लाह को सख्त नापसंद है. अल्लाह ने कहा हुआ है कि शिर्क को मैं माफ नहीं करता. उसके बाद शायद अल्लाह का सबसे या बहुत ज्यादा नापसंदीदा जो किसी इंसान का अमल है वो किब्र है. किब्र अल्लाह को ज़ेबा है. किब्रियाई किसी को ज़ेबा ही नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की एक शान है. वो किब्रियाई, वो गुरूर करे तो कर सकता है, बाकी के गुरूर किसी को हक ही नहीं है. तो हमें अल्लाह पाक इसकी समझ दे कि हमारे दिल में ये बड़ाई वाला उनसर, ये किब्र वाला उनसर अगर हो तो उस पर हमें तौबा करें. ये बहुत सख्त गुनाह है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सख्त वईद है कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसमें जरा बराबर भी किब्र हो. अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे. So today we are going to discuss the regulation of secretion of growth hormone. The level of growth hormone varies. Daily variation in the growth hormone level occur. This diagram, that is the secretion varies throughout the day. You can see at 8 p.m. the level is something, 4 p.m. level is somewhere here, 8 p.m. and at midnight during sleep, this is sleep, during sleep, the level of growth hormone is quite high, and early in the morning again it is reduced to an 8 a.m. पे उसी level पे आ गया. So there are variation in the normal sleep pattern also affects the growth hormone secretion. And this diagram is also exercise. If the person is performing exercise during day, this is daytime, 12 noon पे दिखाया हुआ है जैसे in diagram में, a tremendous increase in the growth hormone secretion occurs. So there are some mechanisms which are causing this. Sleep is causing somehow increased level at midnight. There is high level of growth hormone, and exercise is causing the. So there are some stimulating factors which increase the growth hormone production, and there are some inhibitory factors. यही हमने देखना है how this interplay between the stimulating and inhibitory factors, the level of the growth hormone, etc., is responsible for the regulation of secretion of growth hormone. A few facts we should know about this, basic facts about the growth hormone level. Growth hormone secretion varies throughout the day. हम diagram में देख चुके. And growth hormone, after its production, it is itself a protein. हमने कल देखा that is a 191 amino acid का एक protein है. After secretion, it is attached to plasma proteins. ये free form में कम ही होती है, लेकिन ज्यादातर it is attached to plasma proteins. But this attachment is not very tight, very strong as in case of steroid hormones.
They are quite strongly bound to plasma proteins in the blood. This growth hormone is also, but it is loosely attached to plasma proteins. And half life का आइडिया आपको है कि कोई कंसंट्रेशन कितनी देर में हाफ हो जाती है, रफली हम उसको कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, कि सिक्रीशन का एक खास लेवल हमने अचीव किया है, कितनी देर में वो हाफ हो जाएगा। तो इसकी हाफ लाइफ 20 मिनट्स है। सिक्रीशन का हाईएस्ट लेवल जो हमने अचीव कर लिया है 20 मिनट्स में वो हाफ हो जाता है। क्या मतलब है? ये ग्रोथ हार्मोन आगे काम कर रही है, इस प्रोटीन से रिलीज होके अपना काम कर रही है, या डिग्रेड हो रही है, या क्लियरेंसेस की हो रही है। हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स। ये एंड हमने कल डिस्कस किया था कि many functions of the growth hormones are through somatomedin, especially growth hormone का इफेक्ट ऑन द बोन्स एंड कार्टिलेज तो है ही सोमेटोमेडीन के जरिए से। बाकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है शायद वो भी सोमेटोमेडीन के जरिए से होती, या कुछ और फंक्शन भी सोमेटोमेडीन के जरिए से है, इनडायरेक्ट है। सो सोमेटोमेडीन इज इंपॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फंक्शंस। जो काम करने हैं वो सोमेटोमेडीन ने बहुत ही जगहों पे काम करने हैं बोन की ग्रोथ पे। सो सोमेटोमेडीन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन एंड द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोमेडीन सी का हमने नाम लिया था, कई सोमेटोमेडीन हैं, दे आर प्रोड्यूस इन द लिवर इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ हार्मोन, फिर फर्दर इफेक्ट वो सोमेटोमेडीन करते हैं। सोमेटोमेडीन आर आल्सो वो प्रोड्यूस, दे आर आल्सो बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, लेकिन वो लूजली बाउंड है, ये स्ट्रांगली बाउंड है कंपैरेटिवली। ग्रोथ हार्मोन आसानी से रिलीज होती है प्रोटीन से, लेकिन सोमेटोमेडीन देर से रिलीज होती है। देर से रिलीज होने का फायदा क्या है कि ये ज्यादा देर तक ब्लड में एग्जिस्ट करता है। इसका हाफ लाइफ ग्रोथ हार्मोन के मुकाबले में ये 20 मिनट्स है ना, ये ज्यादा देर। दिस कैरियर प्रोटीन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द लिवर। ये बात होगी कि वो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन आया कहां से है। This loose binding in the growth hormone and strong binding of the somatomedin with this protein is it gives the strong binding, gives the half life of somatomedin to 20 hours. वो सिर्फ 20 मिनट्स है, ये 20 आवर्स है। क्या मतलब? अगर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ने काम करना होता तो वो जल्दी एलिमिनेट हो जाती, लेकिन सोमेटोमेडीन चूंकि काम कर रही है ज्यादातर, तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोलॉन्ग है, ज्यादा देर तक चलता है, बिकॉज ऑफ दी इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है सोमेटोमेडीन वो ज्यादा देर तक रहते हैं। नाउ ग्रोथ हार्मोन का एक जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे कल भी मैंने एक जगह पे फ्लो चार्ट बनाया था, इस फ्लो चार्ट आपको बताएगा ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सेम हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल एक्सिस। कल एक डायग्राम हमने प्रेजेंट की थी, उसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल एक्सिस, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। ये तो आसान सी बात है। तो हाइपोथैलेमस पे कोई इफेक्ट होगा, वो विल इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, हमने जिक्र किया हुआ है ना। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ दीज टू, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। उसका दूसरा नाम सोमेटोस्टैटिन भी है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को सोमेटोस्टैटिन भी कहते हैं। तो इसको ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन लिख लें। रिलीज हार्मोन, अगर रिलीजिंग हार्मोन आएगा ग्रोथ हार्मोन विल बी प्रोड्यूस, अगर ये इनहिबिटरी हार्मोन आएगा ग्रोथ हार्मोन विल बी रिड्यूस इनहिबिटेड। सो दीज टू विल अफेक्ट द एंटी-रिपिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ज्यादा करने के लिए या कम करने के लिए। देन अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगी है वहां से, वो ग्रोथ हार्मोन की फंक्शन हमने डिस्कस की है। दिस ग्रोथ हार्मोन विल बी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड इट विल बी कॉजिंग इट्स इफेक्ट्स। कल हमने नेगेटिव फीडबैक में इंपॉर्टेंट बात क्या की थी कि लेवल ऑफ द इंडिविजुअल दैट पर्टिकुलर हार्मोन और इट्स इफेक्ट्स, ये दोनों नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन या इफेक्ट करते हैं। लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा या इसके इफेक्ट ज्यादा होंगे, दे विल इनहिबिट। अगर ये लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन या कोई भी हार्मोन कम होगी या उसके इफेक्ट्स कम होंगे, देन द ग्रोथ हार्मोन शुड बी प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड, इट विल कॉज द इफेक्ट्स तो मैं डिटेल में कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इट विल कॉज द मोबिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, इट विल इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड लेवल इन द ब्लड, इट विल कॉज द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एटसेट्रा। कल हमने डिस्कस किया हुआ है ना। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ये प्रोड्यूस होंगे। और सेम ग्रोथ हार्मोन
एट द सेम टाइम काम क्या करेगी लिवर में, अभी हमने जिक्र किया लिवर में काम करती है, इट काजेज द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोमेटिन्स। ये सोमेटोमेटिन्स प्रोड्यूस, उसको कल कल भी हमने नाम लिया था, इसका दूसरा नाम ये भी है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ। सोमेटोमेटिन्स याद रख लें, देयर आर सेवरल सोमेटोमेटिन्स, तो उसके जरिए से इट विल कॉज द ग्रोथ ऑफ द बोन, इट विल कॉज मे बी प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ये क्या करेंगे कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ एंड मसल एंड अदर ऑर्गन्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ एटसेट्रा, ये काम है। सो दिस इज द रेगुलेशन। जब ये काम अचीव हो जाए, इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएं, देन ग्रोथ, दिस शुड इनहिबिट ऑल दिस साइकिल। अगर ये नहीं हो रहे देन देयर शुड बी स्टिमुलेशन। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, कैसे ये चीजें कैसे अफेक्ट करेंगी हाइपोथैलेमस को या पिट्यूटरी को फॉर द प्रोडक्शन और इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इसको हम देखेंगे। ये एक चार्ट ज़हन में हो, इसको फिर हम आगे इसको ज़हन में रख के हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात करेंगे। नाउ पहले एक पुराना बिलीव था कि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ बच्चों में होती है, बूढ़े लोगों में ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ की जरूरत जो नहीं है बूढ़े लोगों को, नहीं, ग्रोथ हार्मोन बूढ़े लोगों को भी जरूरत होती है। अब ये देखा गया है, ऑल बिलीव दैट द ग्रोथ हार्मोन इज ओनली प्रेजेंट इन ग्रोइंग एज एंड इट इज डिसअपीयर्स आफ्टर एडोलेसेंस। नो, it is still present in elderly people, though the level is much less. That is growth hormone secreted throughout the life. Level in adults, चिल्ड्रन में तो काफी ज्यादा है, 6 नैनोग्राम्स पर ml, ये नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन है इन यंग चिल्ड्रन। लेकिन विद अडल्ट या बूढ़े लोगों में द लेवल इज वेरी लो, इट मे बी रेंजिंग फ्रॉम 1.6 to 3 नैनोग्राम पर ml। सो लेवल इज रिड्यूस्ड इन एल्डरली पीपल बट इट इज स्टिल देयर। इसकी ये काम करती रहती है जो फंक्शन हमने डिस्कस किया है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज पल्सटाइल। पल्सटाइल का क्या मतलब है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। अभी डायग्राम में हमने देखा है, आगे आ रही है, मेरे हमने दोबारा डायग्राम मैंने ये लगाई हुई है। इट इज पल्सटाइल, इंक्रीज डिक्रीज होती है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ में भी देयर इज पल्सेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ इस पल्सेशन के लिए कौन से फैक्टर्स हैं विच कैन स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, और कौन से फैक्टर हैं जो इनहिबिट कर सकते हैं, हमें वो फैक्टर को लिस्ट कर लेते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी किसी वजह से भी हो, स्टार्वेशन, प्रोटीन बॉडी में कम हो, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे। स्टार्वेशन, प्रोटीन की जनरलाइज डेफिशिएंसी हो, हम ये इफेक्ट है ना, ग्रोथ हार्मोन काजेज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुड इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। उसको याद रखें, नेगेटिव फीडबैक यही हो। सो व्हेनेवर देयर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी इट इज अ स्टिमुलस फॉर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, वन ऑफ द स्टिमुलस। देन लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर लो ग्लूकोज लेवल है तो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीज लेवल शुड इनहिबिट, लो लेवल शुड इंक्रीज। सो हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल is also a stimulus for the production of the growth hormone. Low concentration of fatty acid, ये भी हमने देखा फंक्शन में, हमने देखा ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द फ्री फैटी एसिड लेवल, FFA, ये इसको बढ़ाता है। जब वो कम होगा दिस इज आल्सो स्टिमुलस। सो लो कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड इन द ब्लड। एक्सरसाइज, ये भी हमने डायग्राम में देखा हुआ है। एक्सरसाइज आल्सो, एक्सरसाइज तो फंक्शन है ब्रेन के, मैनी मोटर एरियाज आर इन्वॉल्व, साइक इज इन्वॉल्व, लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व। तो वो सिग्नल, वो एक्सरसाइजिंग सिग्नल जो मसल को जा रहे हैं, जो साइक को जा रहे हैं, जो लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, सिंपैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ सिग्नल्स दे आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस के जरिए से। ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस को जाएंगे देन द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विल बी प्रोड्यूस एंड ग्रो। सो एक्सरसाइज आल्सो अ स्टिमुलस। एक्साइटमेंट, एक्साइटेड पर्सन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है। ये भी एक्साइटमेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, इट इज द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। तो एक्साइटमेंट आल्सो इंक्रीजेज द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ट्रॉमा, डैमेज, डैमेज होगा, कहीं चोट लग गई है, कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, ट्रामा हो गया है। मेंटल ट्रामा भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा भी हो सकता है, फिजिकल ट्रामा भी हो सकता है। तो उसको रिपेयर तो करना है ना, सम प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, कुछ मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल चाहिए, उसमें भी ट्रामा में भी ये इंक्रीज करती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर देती है। दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रामा, स्ट्रेस भी एक ट्रामा है।
और ये भी देखा गया है कि ये दो हार्मोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये भी ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, इनका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द ग्रोथ हार्मोन। और ये तो हमने देखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो आती है वो तो स्टिमुलेट करती है। तो ये सारे स्टिमुलाई हैं फॉर दी इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अपोजिट भी हम अप्लाई कर ले। एक और भी लिखा हुआ आ गया है, स्लीप भी स्टिमुलस है फर्स्ट 2 आवर्स। स्ट्रेंजली एग्जैक्ट मैकेनिज्म शायद ना पता हो कि स्लीप के 2 घंटे बाद ग्रोथ हार्मोन क्यों इंक्रीज करती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इट हैज बीन सीन, अभी इसको रिसर्च जारी है कि ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आप फर्दर एलेबोरेट हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन इट हैज बीन सीन कि स्लीप का भी इफेक्ट है, फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द डीप स्लीप इट कॉजेज द मोर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। नाउ इनहिबिटरी फैक्टर्स, ये तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर थे। इनहिबिटरी फैक्टर कौन कौन से इनहिबिट करते हैं, इनको अपोजिट कर लें, कुछ तो हमें पता। हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलस है तो हाइपरग्लाइसीमिया इनहिबिशन होगी। हाइपरग्लाइसीमिया इज इनहिबिशन, ये इनहिबिट करेगा। नेचुरली नेगेटिव फीडबैक हमें अगर समझ आई हुई है तो इट शुड इनहिबिट हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन, वो डिक्रीज था, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इनहिबिटिव फैक्टर, इंक्रीज कंसंट्रेशन होगा। एजिंग, हमने ये देख लिया कि सिंपल एजिंग प्रोसेस इज समहाउ इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ओबेसिटी, मोटे लोगों में, ज्यादा ओबीज पीपल में, दोस्त ओबीज पीपल में, और भी हम इंसुलिन का भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी काजेज द डिक्रीज रिसेप्टर्स फॉर द इंसुलिन, तो ओबेसिटी समहाउ इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन एज वेल। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ये तो हमने पहले बात की है, सोमैटोस्टैटिन उसको कहें, वो भी इनहिबिट करती है। हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नेगेटिव फीडबैक, और सोमैटोमेडीन दोनों, अगर ये इनका लेवल हाई है तो दिस शुड नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की हमने बात की हुई है। ग्रोथ हार्मोन का लेवल या सोमैटोमेडीन का लेवल या उसका इफेक्ट प्रोडक्शन जो है, ये इफेक्ट जो इंक्रीज फ्री फैटी एसिड लेवल जो है, तो दे आर नेगेटिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। नाउ इसको जरा थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इन स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स को। अक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया, यानी अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल अक्यूटली कम हो जाए, मिसाल के तौर पर मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दे, या मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, ये भी अक्यूट ही है कि मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया। तो अक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया किसी वजह से हो, इट इज अ वेरी पावरफुल स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ हार्मोन। अब मैकेनिज्म, वो साइकिल कैसे होगा, इट विल अफेक्ट द हाइपोथैलेमस। ये ग्लूकोज लेवल in the blood will be detected by some neurons in the appetite center, satiety center, nervous system में आपने शायद पढ़ लिया होगा। तो so hypothalamus will be stimulated by this hypoglycemia and growth hormone releasing hormone will be produced. सो करेक्शन, अगर इस हाइपोग्लाइसीमिया, मेरा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हमारा ग्रोथ हार्मोन लेवल करें, मेजर करें, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे ग्लूकोज की ड्रिप लगाएं, इंजेक्शन लगाएं, हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करें, इमीडिएटली इट विल रिटर्न टू द नॉर्मल, रिटर्न द ग्रोथ हार्मोन लेवल टू नॉर्मल, इसको करेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक और खास बात, ये जो रेड में लिखा हो दूसरा, क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये एक्यूट है। अगर किसी क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है, कोई किसी को खाना ही नहीं मिल रहा, स्टारवेशन है, तो उसमें तो ग्लूकोज लेवल भी कम होगा, प्रोटीन लेवल भी कम होगा, उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलस है, मे भी हो। और उसमें हमने देखा है कि क्रॉनिक केसेस में क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो, हाइपोग्लाइसीमिया भी मौजूद होगा, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है दैट इज मोर पावरफुल स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ये साबित कैसे होता है, आगे डायग्राम में आ रहा है। So chronic malnutrition और chronic protein deficiency, malnutrition से हो या क्वाशियोरकर सिंड्रोम, आपने बच्चों में पढ़ा होगा, सुना होगा, वो उसमें भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। इनमें क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन विल कॉज द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इस केस में क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन में अगर आप उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाएं, जैसे अभी हमने कहा एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज दे दें ठीक हो जाए, उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दें, यू करेक्ट द हाइपोग्लाइसीमिया, ग्रोथ हार्मोन में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो उतना ही ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि दिस हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट द कॉज ऑफ दिस इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल इन दिस केस।
it is a protein deficiency. इसको correction of hypoglycemia in these chronic cases does not lower the glucose level, growth hormone level. लेकिन अगर आप करेक्ट करें प्रोटीन्स को तो वो ग्रोथ हार्मोन रिस्पांस करेगी। ये डायग्राम आपकी किताब की गाइटन पढ़ने वाले लोग गाइटन पढ़ा करें। अगर स्टूडेंट्स हैं सारे तो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि गाइटन अच्छी टेक्स्ट बुक है आपके अंडर ग्रेजुएट्स को समझने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी पढ़ते हैं ये, लेकिन अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो सबसे अच्छी किताब आई थिंक गाइटन है। ये गाइटन की डायग्राम है, आप देख लें कि प्रोटीन डेफिशिएंसी का क्वाशियोरकर का एक पेशेंट है, उसका ग्रोथ हार्मोन लेवल हमने मेजर किया, दिस इज 40 नैनोग्राम, नॉर्मल 6 होता है, अभी हमने देखा था 40 नैनोग्राम है। उसको हमने कार्बोहाइड्रेट की ट्रीटमेंट दी है, 3 दिन तक उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाते रहे, हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक किया है ये उतना ही है लेवल, ये थोड़ा सा कम हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसको हम प्रोटीन देंगे फॉर नेक्स्ट 3 डेज, प्रोटीन देंगे और प्रोटीन देंगे तो ग्रोथ हार्मोन लेवल कम हो जाए। ये क्या साबित कर रहा है ये डायग्राम कि क्रॉनिक केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट द स्टिमुलस, इट इज द हाइपोप्रोटीनीमिया, डिक्रीज प्रोटीन इन द बॉडी। प्रोटीनीमिया नॉट ओनली ब्लड में, बाकी टिश्यूज के प्रोटीन भी कम होने को, दिस इज अ स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ये इट इज हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन, ये तो हम बात कर चुके हैं। ये इफेक्ट होगा हाइपोग्लाइसीमिया का, हाइपोप्रोटीनीमिया का, एक्सरसाइज का, ट्रामा का, स्लीप का इफेक्ट कहां हो रहा है? हाइपोथैलेमस पे हो रहा है। सो हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट होगा, दैट विल प्रोड्यूस दैट ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हम बात कर चुके हैं, जरा उसको इलेबोरेट करना है। हमें आइडिया है कि ये सारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर विल अफेक्ट द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन विल बी अफेक्टेड। सो रिलीजिंग हार्मोन की बात कर लेते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो है क्या? हाइपोथैलेमस से पॉलीपेप्टाइड है, वो भी एक प्रोटीन है छोटा सा, 44 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है। और सोमेटोस्टेटिन जो है वो भी एक पॉलीपेप्टाइड है, छोटा सा, सिर्फ 14 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज द मेन रेगुलेटर, असली वही है। दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगी तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं होगा उसकी इनहिबिशन विल इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन। वो सोमेटोस्टेटिन की शायद ज्यादा जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो भी मौजूद है, वो भी इफेक्ट करता है। हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया दोनों, हाइपोग्लाइसीमिया भी इफेक्ट करता है, हाइपरग्लाइसीमिया इनहिबिट्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया स्टिमुलेट्स, अभी हमने बात किया। लेकिन होता कैसे है? ये हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं। ये तो मैंने चीनी खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, चाय पी ली, टॉफियां खा ली, भूख खत्म हो जाती है। आपने वो पढ़ा हुआ है शायद, नर्वस सिस्टम में पढ़ा हुआ, स्टाइटी सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद है, वो इफेक्ट होता है दिस हाइपोग्लाइसीमिया से या हाइपरग्लाइसीमिया से। सो हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया दे अफेक्ट द वीएम न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करता है और वो फिर सिग्नल भेजता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, वो सिग्नल उस एरिया को भेजेगा। इमोशन या स्ट्रेस या ट्रामा ये भी हाइपोथैलेमस को इफेक्ट करते हैं। एंड कैटेकोलामीन, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये सारे दे ऑल दीज अफेक्ट द हाइपोथैलेमिक प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, ये ऑल दो स्टिमुलेटिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर हमने जो लिस्ट किए हैं, ये हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट कर रहे हैं और दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द सोमेटोट्रोप्स, वो प्रोड्यूस हो गई। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कल परसों जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ये वो अप्लाई हो रहा है। वो कैसे अप्लाई हो रहा है? दिस इज अ प्रोटीन हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन 44 अमीनो एसिड की हमने कहा, इट इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन हार्मोन कैसे काम करते हैं? ज्यादातर सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म। तो अब ये सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म आ गया, दिस सोमेटोट्रोप्स से प्रोड्यूस होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो स्पेशल सेल्स, और दिस एक्स थ्रू साइक्लिक एएमपी, ये रिलीजिंग हार्मोन एक्स ऑन दी सोमेटोट्रोप्स वाया थ्रू साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म, दैट इज सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म। And short-term effects of the entry of calcium for the release of the preformed growth hormone। पहला काम तो ये करते हैं, ये जाके कंबाइन करते हैं ना, जब अपने रिसेप्टर पे कैल्शियम एंट्री होती है, और कैल्शियम एंट्री होती है तो ऑलरेडी फॉर्म्ड ग्रोथ हार्मोन जो इसके अंदर सोमेटोट्रोफ्स के अंदर उन एसिडोफिलिक सेल्स के अंदर जो पड़ी हुई है, दैट इज रिलीज, तो ग्रोथ हार्मोन काम करेगी। लेकिन लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में देयर इज मोर फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एज वेल।
पहले तो बनी बनाई पड़ी है ना, वो कैल्शियम के जरिए रिलीज करेंगे। और फिर अगर अब और जरूरत है, दिस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन विल कॉज मोर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इट इज अ प्रोटीन। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। So it will cause the more production of the growth hormone. So increased growth hormone level अगर होगा, it will inhibit negative feedback inhibition होगा। Increased growth hormone level will inhibit the production of the gonadotrophic releasing hormone and then the growth hormone production. Decrease growth hormone releasing hormone and increase growth hormone inhibitory hormone, ये ऐसे negative feedback inhibition ऐसे होगी। So increase somatometins, इनका भी नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है, जैसे ग्रोथ हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है हमने उसमें, एंड सोमेटोमेटिन्स भी इनहिबिट करते हैं ग्रोथ हार्मोन लेवल को। तो दैट्स हाउ द ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड थ्रू द हाइपोथैलेमस, एंड डिफरेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स affect the hypothalamus, and in turn there is the production of the growth hormone or inhibition of the growth hormone and variation in the growth hormone production. So that's all about the regulation of secretion. Our next video will be very interesting, of course, that is the abnormalities of the growth hormone secretion. अगर बहुत ज्यादा हो जाए ग्रोथ हार्मोन, किसी जगह से रेगुलेशन खराब हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो एबनॉर्मल, हम एबनॉर्मलिटीज ऑफ दी हार्मोन भी डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा इंशाल्लाह ये होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। समझ अगर कोई बात नहीं आई, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट्स, तो कमेंट्स वाले क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे। और ये भी फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं या आप सो मशवरा देते हैं कि यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स और मेडिकल इंडिविजुअल, जिसको भी ज़रूरत हो इसको आप ये शेयर कर सकते हैं। और ये सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।